Hello everyone, welcome to Zen Study, and from the Zen Study team we wish all of you a very happy new year. Hope that this year brings peace, prosperity and lots of success for you. So today we will be talking about a new topic related specifically to your science and tech. If we are talking about science and tech, and as you can see from the screen that हम अब वायरस के बारे में बात करने वाले हैं. So let's go back to 2020. It's almost 5 years now. We are into 2025, so it's not almost, it's exactly 5 years now. So 2020 में something had happened and हमारी जो ह्यूमैनिटी थी इसको एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ सदमा लगा था and our entire lifestyle had come to a standstill. So remember those lockdown days जब सुनसान सड़कें होती थी, सायरन की एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई देती थी, लोगों के शक्लों पर मास्क लगे होते थे, उनके आंखों में एक एंजाइटी, एक पजल, एक काइंड ऑफ क्योस रहता था. एंड इस पूरे सिनेरियो ने हमारे पूरे ह्यूमैनिटी को, इनफैक्ट पूरे के पूरे दुनिया को एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दिया था. एंड आर वी काइंड ऑफ नियरिंग to the same kind of experience in 2025 because China से कुछ ऐसे reports, कुछ ऐसे visuals आ रहे हैं जो kind of hint कर रहे हैं एक नए pandemic पर. If we go back to Baba Vanga's prediction, वो एक बल्गेरियन सूटसेयर थी जिन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड को लेकर predictions किए थे और उन्होंने somewhere अपनी बातों में 2025 के pandemic के बारे में भी जिक्र किया है. So it is a bit controversial, but the visuals that are coming from China, वो somewhere hint कर रहे हैं that we might be entering into a new pandemic phase. So let's discuss more about it and let's get to know more about this new new virus that has kind of originated. And it's not basically new, but yes, हमारे लिए तो नया ही है. So what is this entire incident about? That China में certain respiratory illness के cases दिखे हैं and not just one kind of respiratory illness, various different kind of respiratory illnesses. And what are they? First one is the human metapneumovirus. Next is influenza A. Next is mycoplasma pneumonia. And the last one is COVID-19. So COVID-19 के बारे में तो अब तक हमने PhD कर ली है क्योंकि we have suffered from that phase and from this disease. So coming to influenza A, influenza is basically flu-related symptoms होते हैं, runny nose, cough and cold, chills and fever. So influenza A is related to that. Mycoplasma pneumonia basically वो होता है जिसमें हमारे जो lungs के alveolar sacs हैं उनमें लिक्विड या पस फिल हो जाता है एंड हमारी ब्रीदिंग जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है. सो दैट इज व्हाट इज निमोनिया. ह्यूमन मेटानीमोवायरस के बारे में हम डिटेल्स में आज डिस्कस करेंगे. Now, coming to the human metapneumovirus. What is the human metapneumovirus? हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So, this is not a new virus. मैंने पहले भी कहा था that this was discovered in 2000. This was discovered in 2001 by researchers of Netherlands. ठीक है? So this is not something new. ये पहले से ये strain, इसके जो variants हैं हमें देखने को मिले हैं, but yes, it keeps on evolving. It's transcending itself. So इसके basic features क्या है कि ये एक respiratory pathogen है जो आपके respiratory system को affect करता है, आपके lungs को affect करता है. And what does it cause? It causes illness that ranges from mild cough and cold-like symptoms to severe bronchitis and pneumonia. To understand bronchitis and pneumonia, we have to understand the structure of the lungs. So, मैं lungs बना के दिखाती हूँ आपको basically. So, this is how your lungs kind of look like. It's a diagram. Please mind my drawing. So, ये bifurcate हो रहा है right lung में and लेफ्ट लंग में. ये हो गया आपका
राइट लंग, और ये हो गया आपका लेफ्ट लंग। ठीक है, सो दिस पाइप इज नोन एज ब्रोंकस। दिस ब्रोंकस ब्रेक्स इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ये ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर में, छोटे छोटे बलून सैक्स, इसी में आके आपके जो एयर है वो फिल होते हैं। दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड alveoli। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड दिस इज नोन एज ब्रोंकस। तो जब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन इस एरिया में होता है तो इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ओके, एंड जब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आपके एल्वियोलर सैक में होता है, यहां पर एक लिक्विड पस लाइक फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम निमोनिया कहते हैं। ठीक है, so that is what is bronchitis and what is pneumonia. Now again coming back to the HMPV, so हमने पहले भी देखा कि सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है यंग चिल्ड्रन को, एल्डरली को, इंडिविजुअल्स विथ अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, नाउ वी विल ब्रेक डाउन दी HMPV टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। सो ह्यूमन, अगेन इट रेफर्स टू कि ये ह्यूमंस में हो रहा है, एनिमल्स में नहीं पाए गए हैं अभी तक इसके सिम्टम्स, या ये वायरस अभी तक एनिमल्स में हमें नहीं दिखा है, ये वायरस हमें ह्यूमंस में ही प्रिडोमिनेंटली अभी मिला है। नेक्स्ट इज मेटा। मेटा का मतलब है कि ये अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, ये स्ट्रैंड ट्रांसेंड कर रहा है, ये अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन वाई इसके लिए वैक्सीन बन पाना डिफिकल्ट है। कोविड-19 के टाइम पर भी वही हुआ था, वो अपने आप को रिपीटेडली इवॉल्व कर रहा था, उसके नए नए स्ट्रेन्स बन जा रहे थे, जिस वजह से एक पर्टिकुलर स्ट्रेन को टारगेट करके वैक्सीन बना पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। नाउ नेक्स्ट इज नीमो अगेन विच इज रिलेटेड टू लंग्स। ये जो रूट वर्ड है ना नीमो, जब भी आपको दिखने को मिलेगा दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू एयर और लंग्स। एंड द लास्ट वन इज वायरस। वायरस, अगेन यू नो व्हाट इज अ वायरस, इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट्स अ पैथोजन, जिसकी खुद की पर्सनल लाइफ नहीं होती है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, इट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और रादर इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। वो एक्टिव तभी होता है जब वो किसी लाइव थिंग के कॉन्टैक्ट में आता है, एंड दैट इज वाई एंटीवायरल ड्रग्स और एंटीवायरल वैक्सीन्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम वायरस को टारगेट करें इट्स नॉट पॉसिबल। हम वायरस को तभी टारगेट कर सकते हैं जब हम वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू वो लिव कर रहा है, हम उसे टारगेट करें। ओके, सो दिस इज अबाउट द HMPV। सो ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसके वजह से हमें इस HMPV के बारे में पता चला है? सो व्हाट वी हैव सीन, लाइक देयर हैव बीन सर्टेन विजुअल्स और सर्टेन सोशल मीडिया में कुछ पिक्चर्स शेयर किए गए हैं, जिससे ये पता चला है दैट हॉस्पिटल्स में ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखने को मिला है। चाइना की पब्लिक ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैव बीन ओवरलोडेड विथ पेशेंट्स, एंड ऑल दीज पेशेंट्स आर अप्रोचिंग विथ अ टिपिकल फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, एंड नॉट it's very unique yet very diverse, different form of respiratory disease के वजह से लोग जो hospitals हैं उसको overload कर रहे हैं, and a lot of cases have been coming up, and also it is also showing that there have been claims of crematoriums that have been operating beyond capacity. That is, the cases of deaths has also increased. बहुत सारे traumatic experience भी हो रहे हैं. There have been cases in which people are even succumbing to this respiratory illness. Next, and also there have been some social media posts that have alleged that there has been a state of medical emergency in China, but this has not been verified because neither the Chinese government or the WHO किसी ने इसके बारे में कोई confirmation या verification नहीं दी है. Now, what has been the government's response? Basically, Chinese government की क्या response रही है इस पूरे scenario में? So, China's Disease Control Authority, इन्होंने इस matter को recommend किया है, इसको accept किया है, and they have launched a pilot system to monitor a pneumonia of unknown origin. Please mark this line.
दिस निमोनिया ऑफ अननोन ओरिजिन, इसको उन्होंने समवेयर वैलिडेट किया है और उन्होंने एक पायलट सिस्टम लॉन्च किया है ताकि वो इस पर निगरानी रख सके, इसके बारे में एनालाइज कर सके एंड दे कैन प्रेजेंट अ पर्टिकुलर रिपोर्ट. एंड ऑल्सो द अथॉरिटीज आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंक्रीज्ड respiratory infections, and especially why the surge can be there and especially why it's very risky at this time, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है और विंटर के तुरंत बाद आएगा स्प्रिंग. नाउ मॉनसून्स, स्प्रिंग, ऑटम, ये बहुत ही पोटेंशियल टाइम होता है फॉर द स्प्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज. वाई? बिकॉज इस टाइम पर जब बहुत हार्श विंटर हो या बहुत हार्श समर हो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं. बट एनी काइंड ऑफ माइल्ड विंटर, एनी काइंड ऑफ माइल्ड सीजन, एनी काइंड ऑफ ह्यूमिड सीजन, इस टाइम पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनके ग्रोथ का भी लाइक जो इनकी प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो स्प्रिंग जो अफेक्ट करेगा आपको, इफ यू रिमेंबर मार्च के टाइम पर लॉकडाउन लगा था क्योंकि उस टाइम पर बहुत सडनली देयर वाज अ सर्ज, ग्लोबल लेवल पर सडन सर्ज देखा गया था. कोविड जो 19 पैंडेमिक हुई थी उसके सडन जो केसेस है बहुत ज्यादा सडनली बढ़े थे. सो दिस इज अगेन दैट रीजन, क्योंकि स्प्रिंग के टाइम पर, ऑटम के टाइम पर और मॉनसून्स के टाइम पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. Now, what are the treatment and preventions? Again, it is any normal kind of respiratory disease. It can be deadly, it cannot be deadly yet to know, because WHO ने या चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात की नहीं है. इनफैक्ट WHO is silent on this matter. WHO, that is World Health Organization. Okay, so currently कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट है नहीं HMPV के बारे में. क्यों? बिकॉज ये एक मेटा स्ट्रेन है, ये इवॉल्व कर रहा है खुद को, ये ट्रांसेंड कर रहा है खुद को, तो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन को उठाकर हम वैक्सीन नहीं बना सकते हैं और एंटीवायरल ड्रग नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये इवॉल्व होता रहता है. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इज फोकसिंग बेसिकली ऑन सपोर्टिव केयर टू रिलीव सिम्टम्स, क्योंकि अभी देयर इज नो ट्रीटमेंट, देयर इज ओनली सपोर्ट. सो द बेस्ट thing would be prevent. Try to keep yourself safe so that if this case arises, अगर ये strains इंडिया में आते हैं, so we are kind of prepared to face this kind of situation. Now, what are the general prevention measures? General prevention measures are again going to be the same as COVID-19 because it's a respiratory disease. आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. Prevention is going to be better than cure. Rather than आप बाद में पछताएं, it's better कि आप अभी ये सारे जो kind of actions हैं आप उसको अपने life में adopt कर लें. And the most important thing is that you have to wear masks. Get into the habit of wearing mask, especially winter के टाइम पे तो वैसे भी आपको पहननी चाहिए मास्क, because flu, cough and cold, these symptoms, allergens kind of symptoms, ये बहुत ज़्यादा predominant होते हैं. And especially अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको पता ही है that the AQI is always not as good as it should be. So you should wear mask and keep safe, especially जब आप public transports use कर रहे हैं या आप किसी markets में जा रहे हैं, ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक होने वाली है. नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन तो अभी बना ही नहीं है तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, बट इन केस इन फ्यूचर अगर वैक्सीन आते हैं तो मेक श्योर दैट आप खुद को समहाउ बचा लें एंड यू टेक दी लाइक रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस. नेक्स्ट इज हाइजीन. यस, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप पर्सनली फॉलो कर सकते हैं इज दैट इज सैनिटेशन एंड हाइजीन. सो keep using sanitizers, keep that sanitizer in your with you. जो हमारी हैबिट कोविड-19 के टाइम पर हुई थी, try to bring back. It's better कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाए बिकॉज चांसेस है. चाइना में ऐसे केसेस आए हैं. कोविड-19 के टाइम पर भी चाइना काफी शांत था, बहुत दिनों के बाद जाके लोगों को पता चली थी. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप इस चीज को समझें एंड स्टार्ट फॉलोइंग दैट सैनिटेशन एंड हाइजीन वाला एक्टिविटी. नेक्स्ट इज हेल्दी लाइफस्टाइल. Eat well, keep yourself hydrated, try to eat more citrus fruits, include vitamin C in your diets so that vitamin C kind of acts like an antivirus. It is good to relieve cough and cold from your body.
And again, early action, both from the government level as well as the public level, personal level पे भी early action is important. It's very important कि आप अपना ख्याल खुद रखें. Don't wait for the government to come and tell you something, or don't wait for anyone else to like issue guidelines and then you follow the norms. Start taking care of yourself from day one. The day you got this news, you should start taking care of yourself. Now, what can be the implications of this issue on India? इंडिया चाइना से बहुत करीब है, सो वी कैन ओनली प्रिवेंट, वी कैन ओनली मेक श्योर दैट लास्ट टाइम जैसे कोविड-19 के टाइम पर हुआ था, हमने जो एक्शंस है बहुत लेट में जाकर लेना शुरू किया था. तो इट इज काइंड ऑफ लाइक अ रेड sign for India that India should start taking necessary precautions and measures from now, because it should not like happen as last time. हमने लॉकडाउन भी बहुत लास्ट में जाकर लगाया था, बहुत देर से लगा था लॉकडाउन भी. So because like India is interconnected and also during the age of globalization it is very easy transportation and like हमारे बहुत सारे transactions चल रहे हैं. हम there are people who have been going on trips because it's the end of the season, end of the year and beginning of the year, so there are people who've been going on trips and tours. So it's important कि उन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए. ऐसे सिम्टम्स जो हैं, अगर कोई भी इमिग्रेशन साइट पर है तो ऐसे सिम्टम्स जो है उसको मॉनिटर किया जाए, उनके हेल्थ को, उनके बॉडी के जो टेम्परेचर को उसको रिकॉर्ड किया जाए while they are traveling, like while they are coming inside the country or while they are leaving the country. So it's very important that ये मॉनिटर सिस्टम जो है इंडिया इजिली और बहुत जल्दी अडॉप्ट कर ले. नेक्स्ट इज सर्वेलेंस सिस्टम जो है इंडिया, वो उसको भी लाइक केटर करना चाहिए. इंडिया शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उन्हें तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाए. बी इट अगर इंडिया के अंदर अगर ऐसे केस हैं या अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट इंडिया में वापस आ रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे कोई भी सिचुएशंस अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसको हमें बहुत ही एकदम निप इट इन द बड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरुआत में ही इस चीज को रेकमेंड कर ले और शुरुआत में ही एक्शंस ले ले, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन क्योर. एंड ऑल्सो इस बात से लेकर डरने की जरूरत नहीं है. इट्स नथिंग कि आप वापस से एंग्शियस हो जाए एंड कोविड-19 वाला जो टाइम है उसी को लेकर सोचना शुरू कर दे दैट अगेन पैंडेमिक इज गोइंग टू कम. ऐसा नहीं भी है. इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इट्स बेटर कि अगर ऐसे केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं तो हम बस पहले से आगाह हो जाए और हम अपने आप को कॉशियस, वी टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड वी आर कॉशियस रिगार्डिंग आवर हेल्थ. एंड ऑल्सो हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है इससे. सो होलिस्टिकली ये ना सिर्फ हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट करता है अगर इस टाइप के पैंडेमिक्स वापस से ओरिजिनेट होते हैं तो. So that was about HMPV, the human metapneumovirus. So try to make notes of this and also stay aware. Keep yourself updated with the recent guidelines जो भी आते हैं, and please take care of yourself. And again, a very happy new year. Hope this new year is going to start on a positive note. Thank you for watching this video. Please follow Zen Study.